Prime Minister Modi invokes cash for jobs scam while inaugurating Vande Bharat, says country's misfortune that an important system like railways, which is such a big part of the life of a common man, was also made an arena of politics. हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। CBI and the Enforcement Directorate are probing Lalu Prasad Yadav and his family in this allegation that railway jobs were given and in return bribe was taken by taking their land parcels. Maria Shakil is here with me on the phone line. Maria, I see a pattern here. Every public address of the Prime Minister is underlining the charge of corruption against each of those parties who came together to showcase united opposition in the just ending session of the Parliament. Yes, that's right. And be targeting KCR when he was in Telangana or raising questions around it. So all those political parties which came together, and the petition in the Supreme Court also, Arunima, and the setback that they got from the Supreme Court, in which the bench of Justice Chandrachud, the Chief Justice, had said that they should approach the court individually. They cannot be seen as above the law. But having said that, Arunima, look, as someone who has covered the railway ministry, for several years now, before 2014, railways was seen as a plum portfolio. It was seen as a portfolio which was given to a regional satrap, and invariably it was seen as a political office, some kind of mollycoddling, because in UPA we had seen multiple parties running a coalition government. This was led by the Congress party, and hence, be it during Mr. Vajpayee's tenure, you had seen Mamata Banerjee and several others who have been heading the railway portfolio, Nitish Kumar, Lalu Yadav for a certain time as well. So, railways has been a portfolio, a ministry which had faced this kind of scams in the past. But I think the Prime Minister's charge is specifically against Lalu Yadav and his family. Yesterday, Tejasvi was questioned by the Enforcement Directorate for good 10 to 12 hours in this entire Land for Jobs scam. And there have been vigilance reports and others, even during when Lalu was in office, that there was corruption in the Group C, Group D appointment. Right. Maria, thank you so much. I'm also being joined by RJD spokesperson Shakti Yadav. Shakti Yadav जी, अगर आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा तो उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, बट बहुत साफ था कि वो किस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, किन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जब वो कह रहे थे कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक जमाना था जब रेलवे की नौकरियों के बदले में गरीबों की जमीन ले ली जाती थी। देखिए, बेसिकली अनफॉर्चुनेट है। मैं मानता हूं इस बात को लेकर करके कि देश का रेलवे आज बिल्कुल कंगाल हो गया। आज रेलवे बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी थे। 90,000 करोड़ का मुनाफा देश ने देखा है। रेलवे के संदर्भ में लैंड फॉर जॉब स्कैम को कभी रेलवे ने ही नहीं माना कि हमारे यहाँ कोई करप्शन हुआ है, लीगल विंग ने नहीं माना कि हमारे यहाँ कोई करप्शन हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में दिए गए आवेदन के आलोक में जब सीबीआई ने जांच की थी, तो उसमें क्लीन चिट देकर के यह कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई घपला का कोई संकेत नहीं मिलता है। फिर भी उसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा जिन चीजों को
ऑलरेडी पहले से भी क्लोज कर देने के बाद भी एक इस्तेमाल किया गया पेट्रोल देने का, और तरह तरह की चीजों को पकड़ करके रेलवे में नौकरी देने का अधिकार मिनिस्टर को कहाँ होता है। नहीं, शक्ति यादव जी, यही तो आरोप है, यही आरोप लगा रहे हैं कि पहले पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन केसेस का इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा था, पर अब एविडेंस उभर कर आ रहा है, इसीलिए चार्जशीट फाइल हो रही है। तो एविडेंस तो सामने अडानी का है भाई, एविडेंस तो था, ये पकड़े गए बंदरगाहों पे पकड़े गए नशीले पदार्थ करोड़ हजारों करोड़ का, कहाँ कोई जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची। ये तो साफ पॉलिटिकल प्रेशर तो अब दिख रहा है। जरा हम ये जानना चाहते हैं कि देश के जितने भी प्रतिपक्ष वो सब के सब भ्रष्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो विजुअली पैसा लेते हुए देखे गए वो सब वहां पर जाकर करके कमल छाप साबुन से सब पवित्र हो गए। सवाल वो नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को भय है 2024 को लेकर के, जो आंखों में दिख रहा है। हर पॉलिटिकल समान विचारधारा वाले दल जो है एक मंच पे आते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक परेशानी तो बढ़ेगी, और इनके मन में और इनके आंखों में भय है। उस भय का प्रकटीकरण है कि वो इन बातों को कर रहे हैं जो बात कभी स्थापित न हुआ है न होगा। पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है शक्ति यादव जी कि प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है, पर्सनल करप्शन का कोई एलिगेशन उन पर कोई भारतीय वोटर मान ही नहीं सकता, जबकि विपक्ष के बारे में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि विपक्ष के ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट्स करप्ट हैं और वो पैसा लेते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को खोखला कर रही है, अर्थव्यवस्था खोखला कर रही है, अपनी पूंजीपति मित्रों को लिए जोखिम में डाल रही है उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं में देश की आवाम का पैसा भारतीय जीवन बीमा में लागू है, जमा है, वो जोखिम में पड़ गया है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार के विस्फितवा बन करके पर्सनल भ्रष्टाचार को अपने अलग कर करके अब रखिएगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आपके जो पूंजीपति मित्र इर्द गिर्द है, जो सो कॉल्ड जिनको आप समर्थन करते हैं, संरक्षित करते हैं, वो सब तो भ्रष्टाचारी ही है। तो देश की संपदा को लूट रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लूट रहे हैं। शक्ति यादव जी, अगर आप मुझे एक मिनट दे तो भारतीय जनता पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला इज हियर विद मी। शहजाद, शक्ति यादव फ्रॉम द आरजेडी सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर्स अटैक अगेंस्ट ऑपोजिशन इज ओनली टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम एलिगेशंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। किसी का नाम तो लिया नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इनको क्यों चुभ रहा है? इसलिए चुभ रहा है क्योंकि आपको याद होगा लैंड दो जॉब लो वाला स्कैम, ये हमारे समय में नहीं, लल्लन सिंह जेडीयू के नेता ने शिकायत की थी, और ममता बनर्जी जी ने यूपीए 2 के टेन्योर में इसमें प्रोब ऑर्डर किया था। तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर भी मानते थे कि ये करप्शन में लिप्त परिवार है, और आज तो आरजेडी के मुखिया 4 बार कन्विक्ट हुए हैं कोर्ट से, तो क्या ये विद्वेष की भावना है? और उस समय पर ग्रुप डी की जो जॉब्स थी, किस प्रकार से लोगों की संपत्ति लेकर, लैंड लेकर, गरीबों की लैंड चुरा कर एक परिवार को देकर जॉब्स दिए गए, उसका तो पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने है, और कोर्ट ने इसमें ट्रायल के लिए कहा है, और कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। समन्स के आधार पर पेश होने के लिए कहा, तेजस्वी यादव जी गए थे हाई कोर्ट तक कि मुझे राहत दे दो, पर राहत नहीं मिली। तो मुझे लगता है करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने तो कहा कि उन्होंने कहा कि नाम किसी का नहीं लिया, सवाल सामने, देश के सामने सवाल है। अब लैंड फॉर जॉब के संदर्भ में जो भी बातें आपने कही, कोई एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, और न किसी ने एडमिट किया है इन बातों को कि लैंड लेकर के मुझे जॉब दी गई। रहा सवाल कि जबरन किसी को पकड़ करके आप जो भी करना है करवा लीजिए, लेकिन नौकरी देना मंत्रियों का काम नहीं होता। और वो आज नहीं, लालू प्रसाद जी के समय में नहीं, उसके पहले वहां तो लोग डीआरएम का स्तर से लोग करके इंजीनियर स्तर पर लोग बहाल कर लेते थे पहले के जमानों में। नहीं, यही तो शक्ति यादव जी, शहजाद पूनावाला यही तो कह रहे हैं कि ये कंप्लेनेंट तो ललन सिंह जी थे, जेडीयू जी, जिनके साथ आज आप अलायंस में हैं, ममता बनर्जी जो जिनके साथ आप ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं, उनके टाइम पे ये प्रोब ऑर्डर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि वो हुआ था, लेकिन उस समय इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दिया गया कि नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। शहजाद, लेकिन जिन लोगों तो साफ दिया गया था, क्योंकि उस समय पर केज्ड पैरेट था और अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल होता था। परंतु आज कोर्ट ने संज्ञान लिया, चार्जशीट फाइल है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें अधिकारी भी, परिवार के लोग भी है। पूरी मोडस ऑपरेंडाई बताई गई है, कैसे जिन लोगों को नौकरियां दी गई उन्हीं से जमीनें ली गई, कैसे उनकी भर्ती की गई जबकि भर्ती की आवश्यकता नहीं थी, कैसे मुंबई और अलग अलग जोन में दिया गया उन लोगों को जो पटना के निवासी है। ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई कोर्ट ने चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखा है सीबीआई ने, और कोर्ट ने स्वीकारते हुए इनके ऊपर ट्रायल कहा है, और कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी है। तो क्या कोर्ट भी विद्वेष कर रहा है? दूसरी बात, राहुल जी तो 4 बार चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए हैं ना, मतलब आरजेडी का मतलब रॉबरी, जालसाजी और धोखा। ये रॉबरी, जालसाजी और धोखा वाली पार्टी है। इन्होंने